Hello everyone, it's me Akshata from Avishka, Voice of an Unspoken Mind. I'm here. I'm an engineer, HR, and a life coach. I have a passion for collecting stories and having conversation that can impact and create motivation among people. Today's session is for women entrepreneurs to follow your dream, lead your path, multi-grow, multitask, grow, never give up, say yes to yourself, and look for the power within. Before I begin, I would like to quote a beautiful verse for women in Sanskrit. राष्ट्रस्य स्वनारी अस्ति नारी राष्ट्रस्य अक्षी अस्ति नारी माता अस्ति नारी कन्या अस्ति नारी भगिनी अस्ति नारी शक्ति शक्तिशाली समाजस्य निर्माण करोति. Today we have someone very special, beautiful, successful, self-made woman, also known as Guru Ma, Dr. Rekha Desai, PhD in dance, Masters in Commerce and Hindi. She is the founder of Kalakriti Dance Academy, awarded as Nritya Shiromani in 2017. She is also prestigious member of International Dance Council UNESCO Paris, founder, trustee of Kalakriti Cultural Center and NGO working towards imparting skills and empowering women. She is the secretary of MBG Lions Club, ex-vice president in Child and Women Development Human Rights. She is also a pranic psychotherapist, personal mentor, and a life coach. During COVID-19, she has designed a unique program for women known as Kala Shakti to gain confidence and invoke the Shakti within us. I thank Dr. Rekha ji for coming to my platform and sharing her inspirational story to everyone out there. Rekha ji, namaste. Namaste. How are you, ma'am? You're looking very stunning. Thank you so much. Ma'am, thank you, ma'am. I'm so glad and I'm feeling very blessed that you have come out and in my platform for sharing your inspiration story to all women out there who can further grow and become an entrepreneur. Ma'am, can you please? Yes. Ma'am, can you please tell us your journey in life up till now and why you selected dance as your career? Yes, Akshata. So, when you're talking about dance and my life, I should say that dance came to me rather I choosing dance, because I was too young when I was forced into my dance classes. I am born in a very big family. We are six siblings, and I am the youngest one. And so my sisters decided that रेखा छोटी है तो उसको डांस क्लास में डाल देते हैं. तो इस प्रकार I was only 3 or 4 of my age, and I started with my dance classes. And then उसके बाद कभी मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा. So that is how I think dance itself came to me. So that is why I generally say that I am the chosen one. Yes, ma'am, since you are born in a Gujarati family, all of a sudden, like it's very rare to find someone from Gujarati family learning Bharatanatyam and coming all over here and starting up your own academy. Ma'am, I want to know how was it? What was the reaction, initial reactions? See, I started my Kalakriti Dance Academy at Chennai itself in 1985. I moved to Mumbai in 1990. 1991 का academic year था वो. And when I started my academy in Chennai, it was not a very big challenge for me. And I had a pretty good 300 students there. And at the age of 17, when I started teaching, okay, at that time. बट क्या है कि कल्चर का बहुत डिफरेंस है यहाँ का और चेन्नई का. तो वहाँ पे इट इज लाइक एवरी गर्ल फ्रॉम द फैमिली, एनी वन ऑफ द गर्ल एटलीस्ट, अगर 2-3 बेटियां हैं तो एटलीस्ट वन गर्ल वुड गो फॉर डांस क्लास. इट वाज लाइक दैट. पर यहाँ आने के बाद बहुत बड़ा चैलेंज था
culture difference and everything was different here. पर एक चीज मुझे पता था कि मुझे क्या करना है और डांस को मुझे हमेशा मेरे साथ रखना है. ये दिस वाज वेरी वेरी क्लियर इन माय माइंड. इनफैक्ट वो कंडीशन पर ही मैं शिफ्ट हुई मुंबई. Okay. And what kept you going? Who was your inspiration in your life? I would say my mother was an inspiration to me because in a very subtle way she supported me. ऐसा कुछ बहुत बड़ा लेक्चर एंड आजकल के जमाने में जितने पेरेंट्स बच्चों के साथ बात करते हैं, बच्चों को फ्रेंड्स की जैसे रखना है और ये सारी चीजें जो अभी जो डेवलप हुआ है ये 40 साल पहले नहीं था. मतलब जो भी मम्मी कहती है, जो भी फादर कहते हैं वो करना है और प्रोबेबली हमारे घर का कल्चर ऐसा था. तो वॉट एवर शी सेड आई डिड. बट आई रिमेम्बर एक मेरा इंसिडेंट कि मेरा जब अरंगेट्रम हुआ था when I was 11 years old, she gifted me a Nataraj, one small Nataraj. So and she used to say कि knowledge को बढ़ाओ, you know, जो भी चीज आपके पास यहाँ पर है ना वो कोई चोरी करके लेके नहीं जा सकता. सो जितना भी पढ़ना है पढ़ो, जितना नॉलेज आपको इकट्ठा है करना है वो करो. एंड नॉट ओनली माय मदर, मेरे बापूजी भी. You know, my father expired when I was too young, but my bapuji, he was the one who raised me. And educationalist family था हमारा, तो I think they all supported me कि भाई जितना पढ़ना है पढ़ो, जितना आगे बढ़ना है बढ़ो, इस तरीके से. So कहीं पे कोई रुकावट नहीं थी. And yes, mother was a great inspiration. Yeah, so because you are born and brought up in such a great family, like where they have given you a freedom to be what you are. That is most important of all, because that values it's very rare to find, I think, at that period, at that era, because it was a very strict and orthodox family. But in that era, you were lucky enough to be born in that family where you're given total freedom and to be who you are. Yes, that's really very great. So, ma'am, you have created. Yes, ma'am. No, ma'am. I want to. Yeah, I interrupted. Sorry. No, it's okay. I just wanted to say that we all the sisters, we were given freedom, but at the same time, my father was very particular that you should know your mother tongue. So Gujarati classes के लिए हम गए, and then my mother was very particular that kitchen का काम आपको आना चाहिए. तो like हमको सारी तरीके से I think ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो कहते हैं ना वो किया है मम्मी ने हमारा सभी बहनों का. ऐसा भी नहीं है कि भाई बाहर का आप कर रहे हो तो घर में जीरो हो. You know? I tell the same thing to my children also कि आप कितना भी पढ़ लो, लिख लो, कुछ भी कर लो, घर का काम है या अपनी खुद की जिम्मेदारी है, उसमें भी आपको इतना ही सक्षम होना चाहिए. कल को आप अगर आपके असिस्टेंट भी अगर आप रखते हो तो you should know your job, then only you will tell your cook how to cook. Yes. Most important of all. Even train all the aspects, you know. Yeah, because it's true. अगर हमें ही खाना बनाने को नहीं आया तो हम क्या दूसरों को बोलें. Exactly. अगर हमको हमारा टेस्ट पता नहीं है तो फिर हम कैसे उनको करेंगे. And the same thing comes for the administration level also, where I am doing it for my dance academy. अगर मुझे वो ट्यून का काम पता नहीं है तो मैं उसको कैसे गाइड करूंगी. Right. When I started my academy, मैंने क्लासेस में झाड़ू मारना, पानी भर के रखना, ये काम भी किया है और वो करने के बाद में जाकर प्रिंसिपल की कुर्सी पे बैठती थी, वो भी किया है. So जब हम पर्टिकुलरली ऐसे जब अपना खुद का हम कुछ शुरू करते हैं तो you should know all the jobs of your niche. Yes, so it's always start from below, from basic, and then it goes. It's like that. So yes, छोटे-छोटे steps लेके ही हम बड़े हो जाते हैं. हाँ. Yes. And ma'am, you have created a dance revolution. I would like to know the challenges you faced while pursuing your dream and building Karakriti Dance Academy.
You are asking the challenges which I faced. Yes. Okay, so the challenges actually started when I shifted to Mumbai. The biggest challenge was people here were not knowing Tamil or Sanskrit even, no South Indian languages. Even the South Indians, those who are here, born and brought up in Mumbai, they did not know South Indian, their own mother tongues. Oh. Yeah. तो काफी बार ऐसा हुआ है कि the Tamil students who comes to me, I teach them Tamil also. तो ये बहुत You being a Gujarati, you are teaching them Tamil. That's really great. I am very good in Tamil actually. शुरू में ऐसा था कि गुजराती में मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था. I was more better in Tamil. I used to feel like that. But अभी तो ठीक है, अभी 30 years हो गया. It's quite long time here in Mumbai. So I can speak fluently Gujarati also, and Tamil is always there, and I love that language. So so the biggest challenge was this. And the another thing was जो कॉस्मोपॉलिटन जो पब्लिक थे, जो स्टूडेंट्स आ रहे थे मेरे पास, उनको भाषा समझ में नहीं आ रही थी, इसलिए उन लोगों को पूरा क्लासिकल डांस को समझने में ही तकलीफ आ रही थी, यू नो, बिकॉज क्लासिकल डांस देखने में आपका जो कॉस्ट्यूम है इतना सुंदर होता है, वो मेकअप एंड ऑल दैट थिंग्स, तो कोई भी इंसान जब वो देखता है ना, तो उनका रिएक्शन ये होता था कि दिख रहा, बहुत अच्छी सुंदर दिख रही है, बहुत अच्छा किया बेटा आपने, मेरे स्टूडेंट्स को ऐसे कहते थे, पर समझ में नहीं आया क्या किया आपने. Yeah. तो यहाँ पे बहुत बड़ा चैलेंज था मेरे लिए, क्योंकि वहां पे लैंग्वेज वाज नॉट अ बैरियर व्हेन आई वाज इन चेन्नई. यहाँ पे वो आया तो मेरा जो बचपन से ही जो मेरी ख्वाहिश थी कि भाई मुझे मैं आई एम ऑलवेज वेरी क्रिएटिव, तो जो ख्वाहिश थी मेरे में कि भाई मुझे डिफरेंट लैंग्वेजेस में करना है, उसको मैंने फिर शुरू किया. एंड पहला मैंने शुरू किया गुजराती डांस बैले, वहां से शुरुआत की मैंने, तो बहुत चर्चा हुआ, मतलब सारे न्यूज़पेपर्स में, सारे टीवी शोज में मेरा इंटरव्यू लिया गया था कि आपने भरतनाट्यम का मतलब दूसरे लैंग्वेज में करके आपने ये क्या किया है करके. बट आई न्यू व्हाट आई डिड. वो एक रेवोल्यूशन था, और मैंने कहीं भी अपने शास्त्रार्थ और संप्रदाय का जो है, जो पद्धति है क्लासिकल डांस की, उसको मैंने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया. उसको बरकरार रखते हुए मैं कहाँ मैं उसको एक्सप्लोर कर सकती हूँ, वो पूरा मैंने किया. सो आई वाज नॉट इन फॉल्ट. सो देन आई टोल्ड देम एवरीथिंग, आई मेड देम अंडरस्टैंड, एंड बहुत अच्छा रिस्पांस मिला. पीपल एक्सेप्टेड. It's quite a challenging actually. Yeah. Because I'm sure people would criticize, अरे ये डांस का तो इसने अलग ही कर दिया. I'm sure people have a criticism ready for these kind, but you did it successfully. That's actually a very great achievement. वो ऐसा है ना कि when you know 100% you are right, I feel मैं मेरे इंस्टिंक्ट्स के साथ चलती हूँ, मैं ज्यादा सुनती नहीं हूँ. जहां तक when I know something, I will not listen to anybody. If I don't know, yes, I will ask for the advice, but I will still do what I feel right. And by God's grace, I should say that 99% I'm always right. That's good. That's a good. Okay, but then एक्सप्लोर किया अक्षता. उसके बाद तो मैंने म्यूजिक के साथ भी एक्सप्लोर किया, कॉस्ट्यूम्स के साथ मैंने एक्सप्लोर किया. लाइक इफ यू सी फ्यू ऑफ माय बैलेस कृष्ण का जिसमें नाग का है, वहां आई हैव यूज्ड ब्लैक, whereas we are not supposed to use black, पर आजकल तो पहनते हैं, बट मैंने जब शुरू किया था तभी नहीं था. एंड देन आई हैव यूज्ड वाइट कॉस्ट्यूम्स फॉर विठला डांस बैले. तो इस प्रकार से मैंने लाइट्स बोलो, साउंड बोलो, इंस्ट्रूमेंट्स, माइक, लैंग्वेजेस, सभी प्रकार का मैंने चीजों को एक्सप्लोर किया है डांस में. Yeah, but then how did you manage your professional and your personal life? Because handling that, it's very challenging, I think so. Yeah, it was very very challenging, but I would say that मेरा focus बहुत
शार्प था मेरे डांस के लिए और मेरी फैमिली के लिए। इसके अलावा मैंने कहीं भी मेरे फोकस को मैंने आने जाने नहीं दिया। एंड थैंक्स टू द टेक्नोलॉजी ऑल्सो कि फोन्स नहीं थे वो टाइम पे, तो व्हाट्सएप नहीं थे। व्हाट्सएप नहीं था, तो मेरा काफी टाइम बच गया उसमें। Yeah. And what about your family, ma'am? How are they? The support coming from your end? Support from my husband, I should say that he didn't support me in dance, but the best thing he did is he didn't interfere in my work. That's actually very nice of That is uncle. the best thing he did. And then, as I told you, हमारी परवरिश भी ऐसी थी मम्मी की कि भाई अपना जो ड्यूटी है वो आप करो. And then all the ladies, we have at least 5 to 6 hours of time in a day, productive time, जो हम कर सकते हैं. तो मैं मेरा काम मतलब I used to teach in ठाकुर कॉलेज डांस का. तो 7 बजे की कॉलेज थी हमारी, तो I used to get up by 4 o'clock in the morning. I used to do the breakfast, I used to cook the lunch, and then I used to go to college. Once I come back, then मैं भी परफॉर्म कर रही थी वो टाइम पे. तो मेरे आने के बाद हम लंच पिरोस के भी देना था सास को, ससुर को, हस्बैंड को, सबको. एंड देन 3:30 से मेरा डांस रिहर्सल शुरू होता था अप टिल 7:30 इन द नाइट. एंड देन डिनर टाइम. तो 10 तो ऐसे ही बज गए, सो गए, खत्म मेरा दिन. तो इस प्रकार से गया. बट तो क्या है कि मैंने मेरी ड्यूटी करते हुए मैंने डांस को मेरे साथ रखा, इसलिए ज्यादा कहीं से कंप्लेंट आने का कहीं पे था नहीं. बट फिर भी ऐसे इंस्पिरेशन बहुत रहते हैं अपने आजू बाजू में बोलने वाले करके. तो ऐसे जो इंस्पिरेशन देते हैं हमको, उनको सुनना नहीं. जो भी है अपने दिल के सुनो. Exactly, because I know what I'm doing is right for my family and for myself. Yes. Yeah. That's more important. And most of time it happens that ladies they after childbirth they are like forced to leave their jobs. They get in the tremendous pressure. So these kind of situation, what do you think was the best advice for them? See, not only post maternity का बात है यहाँ पे, जिंदगी में भी कोई भी प्रॉब्लम जब भी आता है, when we are facing, I would say take a pause. Don't stop. हम क्या गलती कर बैठते हैं कि जैसे ही कोई भी चैलेंज आया, कोई भी प्रॉब्लम आया, तकलीफ आई, हम वो चीज को टोटली बंद करके बैठ जाते हैं. Yes. Rather take a break, take a pause, think it over. और वो पॉज हो सकता है कि भाई 6 महीने का हो या 1 साल 1.5 साल का पॉज हो. इट इज ओके. लंबी है जिंदगी अपनी. 50 साल की अगर जिंदगी आप सोच रहे हो, तो 1.5 साल का अगर आपने ब्रेक ले लिया तो इट इज ओके. पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इतने कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई बच्चे होने के बाद नहीं मतलब मुझे तो बच्चे के साथ रहना है, तो मेरा पूरा करियर में बंद करके बैठ जाऊं. मेरे हिसाब से वो बहुत गलत है. I think the working parents rather give more quality time to their children. वैसे भी पूरा दिन बच्चों के सिर पे बैठने का भी कोई मतलब नहीं बनता है ना. Yes. Yes. बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम आप बिताओ, that is more important. Yeah, this is a very important subject, because and very close to my heart, because I have undergone tremendous pressure from people around me to quit my job, and suggestion from all over the places. Do this, do that, don't do this, don't do that. ऐसा नहीं करो, वैसा नहीं करो. So I understand what is that feeling, and but not everyone is like me. Like all people have their different perception. So women get more tend to the stress and the depression. So how to be not guilty of loving yourself? Like when we think of ourselves, people tell that, oh, you are very selfish. You are just thinking about yourself. So in this situation, like how not to be guilty of loving your own self? See, loving your own self and being selfish is altogether two different things. इसमें भी कंफ्यूज नहीं होना चाहिए.
when you are loving yourself तभी आप अपने परिवार को भी पूरा जस्टिस कर पाओगे, बच्चों को भी आप पूरा जस्टिस कर पाओगे। सेल्फिशनेस का क्या मतलब है कि हम सिर्फ अपना ही देखें, और कोई खाए ना खाए जाने दो, बच्चा रो रहा है करने दो, हम ऐसा तो नहीं कर रहे हैं ना। हम अपनी प्रायोरिटी को रख रहे हैं, बट उसके बाद जो प्रायोरिटी के बाद का जो समय है दैट इज टोटली डिवोटेड टू द फैमिली। तो आई थिंक वो जस्टिस हो जाता है उसमें। और इसमें आपके परिवार का और आपका जॉब का, ये दोनों का ही लेना देना है इसमें। इसके अलावा जो बाहर वाले लोग हैं दैट इज नन ऑफ देयर बिजनेस। तो उनके लिए उतना सोचने की जरूरत नहीं है हमको भी। Yeah, that is true. जैसे as I told you, मेरा शेड्यूल कैसा था सुबह से लेके रात तक का, I told you। तो कई बार ऐसा होता था कि 7:30 को शाम को फ्री होने के बाद मैं सीधा किचन में फॉर डिनर। तो I used to take my children in the kitchen. I think most of the time मेरा और सिद्धि का quality, you have met Siddhi, right? Yes, yes. You took a wonderful session from her. Yes, so, yes. मेरा और सिद्धि का क्वालिटी टाइम हमारा किचन में था। मुझे याद नहीं है कि मैंने कोई बहुत बड़े खिलौने लाके दे दिए सिद्धि को। उसके खिलौने थे वो चम्मच और बाटी, और हाँ वही उसकी आवाज करना, मतलब उसमें भी म्यूजिक था हमारा, तो हम कुछ ना कुछ उसमें भी करते रहते थे। आई एम मदर डॉटर। और जब वो बड़ी हुई तो उसका होमवर्क, और होमवर्क भी अगेन अगर नहीं है तो टेबल्स उसको मैं कराती थी। या बहुत उसको अभी वो याद कर रही है मुझे कि कितना आप मुझे डांट रहे थे। ये एक क्वालिटी टाइम था हमारा। और मैंने टिल 9th स्टैंडर्ड उसको ट्यूशंस में रखा नहीं था, इन स्पाइट ऑफ डूइंग सो मेनी एक्टिविटीज, घर के बाहर में थी, और फिर भी उसको ट्यूशंस में रखने की नौबत नहीं आई मुझे, क्योंकि दैट क्वालिटी टाइम यू नो। सुबह के टाइम पे भी 6 बजे जब उसको मैं वैन के लिए छोड़ने के लिए नीचे जाती थी, वो टाइम पे भी मेरे 2 टेबल्स हो जाते हैं उसके साथ। अच्छा आज 6 टेबल का है ना तुम्हारा एग्जाम, 6 का टेबल बोल दो, 7 का टेबल बोल दो, 8 का टेबल बोल दो, इतना हो जाता है 5 मिनट में बाय द टाइम द वैन कम्स। तो तो थोड़ा सा अगर प्लानिंग हम कर, तो ऐसे अगर हम करते हैं ना तो चिल्ड्रन लर्न फ्रॉम अस। तो इस वजह से भी स्टेशन जो क्वालिटी है ना वो अपने आप आ गया सिद्धि में। Managing and giving priorities. Actually, children all love from mother, do this, learn from this from mother itself. So if mother is doing all these things, they automatically see and learn it. Yes, yes. इनफैक्ट वो बच्चे और भी ज्यादा स्मार्ट हो जाते हैं मेरे ख्याल से। Yes, 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 yes. And ma'am, it happens that some people get to in this post maternity they get into a severe depression. So what techniques we can do to handle that depression and let go of it, like avoid getting more depressed? See, you will get more depressed when you don't do your job. So it is better that you follow your passion. अच्छा, अभी बात ये है कि डिप्रेशन क्यों आता है हमको, जब 2 चीज नहीं होती है। अपना इंटरेस्ट का काम अगर हम नहीं करते हैं तो वी फील लेफ्ट आउट। तो वो एक चीज नहीं होनी चाहिए, वो हमको डेफिनेटली करना चाहिए। और दूसरी चीज जो मेरे फादर हमेशा बोला करते थे कि या तो आपके पास संस्कार होने चाहिए या तो संस्कृति होनी चाहिए। That is kala, that is any of your passion, whether you have good sanskars, good background of that culture, art and culture and all that, वो बहुत possible नहीं होता है अपना ये इरा में। और you have some one of your passion, अगर ये 2 चीज अगर आपके पास रहता है तो डिप्रेशन नहीं आएगा मोस्टली, ये मैंने देखा। क्योंकि इवन आई हैव अंडरगॉन ऑल दैट थिंग्स। और डिप्रेशन मतलब एक फीलिंग जहाँ पे आई फील दैट आई एम नॉट डूइंग गुड एनफ। Yes. ये उम्र में मुझे इतना कर देना चाहिए था पर नहीं कर पाई, कहीं ना कहीं मैं रुक गई, कहीं ना कहीं पर मेरा रह गया, तो अभी मुझे वापस स्टार्ट करना पड़ रहा है। ये सारा जो फीलिंग आएगा ना, ये फीलिंग इसलिए आएगा क्योंकि हम काम करना छोड़ देते हैं। Yes. आजकल के लड़कियां दे वर्क टिल 27, 28 तक काम करते हैं, नौकरी करते हैं,
एंड देन फिर शादी एंड बच्चा. बाय द एज ऑफ 30 to 35 का ये जो एज है, ये टाइम पे डिप्रेशन आने का बहुत ज्यादा चांस रहता है. तो क्योंकि आपके ऊपर जिम्मेदारी भी एक बच्चे की भी आ गई, और हम लोग ट्रेनिंग लेके नहीं आए हैं ना, हम लोग भी इंसान ही हैं, हम लोग भी पहली बार मदर हुए हैं, तो गलतियां होने का भी चांसेस है. तो ये सारी चीजें जो हम सीख रहे हैं बच्चों को बड़ा करते करते, इवन मदर्स लर्न, तो हमारे लिए वो लर्निंग का टाइम होता है. नई चीज जिंदगी का एक अलग पड़ाव होता है. ऐसे टाइम पे अगर आपके पास आपका मन में खुशी हो, दिल में खुशी हो, ऐसी अगर कोई चीज अगर आपके पास नहीं है, तो हाउ विल अ लेडी सर्वाइव? Yes, yes. डिप्रेशन आना बट ऑब्वियस. So that is why what I suggest is at least कुछ पार्ट टाइम करें, या घर बैठ के काम करें. ऐसे भी कुछ चीजें हो सकती है जो उनको दे हैव टू वर्क आउट अकॉर्डिंग टू देयर प्रोफेशन, कि भाई किस प्रकार से इसको एडजस्ट करके हम कर सकें, रादर देन अपना लाइफ का जो ग्रोथ है उसको टोटली स्टॉप करने के अलावा आई थिंक वो स्लो पेस में कर सकते हैं. Yeah, and there is a saying also, like money should not come from one source. Yeah. You are able to honor and do all those things. So what do you think is like qualities required to become an entrepreneur? Qualities to become an entrepreneur. Yes. First, I think the first and foremost is confidence within yourself. आपको इतना कॉन्फिडेंट होना ही चाहिए कि भाई ये मैं कर सकती हूँ. और वो कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? व्हेन यू नो योर सब्जेक्ट वेल. सो आप कुछ चीज आप करने जाते हो तो मेक श्योर दैट यू नो दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट वेल. अगर आपका उसमें मास्टरी है, अगर आपका जिंदगी का काफी समय उसमें गया है, एंड यू नो योर सब्जेक्ट वेल, आई थिंक वो कॉन्फिडेंस अपने आप बिल्टअप हो जाता है. एंड देन अगर उसमें कुछ भी गड़बड़ होता है तो बिकॉज यू आर अवेयर ऑफ योर सब्जेक्ट, तो आपको उसको रेक्टिफाई करना भी आ जाएगा. लाइक आप मेरे लिए भी देखो कि मैं एक्चुअली आई एम अ डांसर, ओके, आई एम एन आर्टिस्ट, बट आफ्टर कमिंग हियर व्हेन आई थॉट दैट अभी मुझे थोड़ा स्टेज छोड़ना चाहिए, मुझे जगह करनी चाहिए कि मेरे स्टूडेंट्स को, मेरी डॉटर को चांस मिले आगे स्टेज में जाने के लिए. जनरली हमारे प्रोफेशन में ऐसा होता है कि हम लोग ही रहते हैं आगे, इवन 70 years 80 years होने के बाद भी एक ही नाम है. हमने कभी देखा नहीं कि भी उनके बाद ये लोग है. ये मैंने ऑब्जर्व किया था मेरे प्रोफेशन में, तो मैंने वो स्टेज की जगह थोड़ी थोड़ी खाली की मैंने, क्योंकि अभी उसके बाद मेरे बाद सिद्धि है, इसके बाद कलाकृति के स्टूडेंट्स हैं, और वो संस्था बड़ी है, क्योंकि संस्था रहे, मैं रहूं या ना रहूं, संस्था रहेगी. आपका जो अगर एंटरप्रेन्योर की हम बात करें तो आपका जो स्मॉल स्केल या लार्ज स्केल जो भी इंडस्ट्री है वो रहेगी, तो मेरा भी कलाकृति इंडस्ट्री है, ये रहेगी. तो यहाँ पे मुझे वो सैक्रिफाइस करना पड़ा कि मेरे बाद जो आ रहे हैं उसको कंटिन्यू करेंगे, उनको भी मैं ट्रेन करूं. तो उनको जब हम ट्रेन करते हैं तो उनकी भी जो गलतियां हैं मैं रेक्टिफाई तभी कर पाऊंगी व्हेन आई नो माय सब्जेक्ट वेल. Yes. So I think knowledge is very important for any of the entrepreneurship, and that leads to confidence. And second चॉइस ये है आपके पास कि अगर आपके पास नॉलेज नहीं है पर एडमिनिस्ट्रेटिव अगर क्वालिटीज आप में बहुत है, यू कैन हायर समबडी एंड मेक इट हैपन. Yes, that's true. So since you said about you going away from the stage just to provide other people a chance to come, so what was your experience? Like, you enjoy performing or you enjoy mentoring new talents? I enjoy actually mentoring new talent. Because my subject, I'm talking about my subject, that dance इतना gracious है कि when the child is no उसका 7 years 8 years का ट्रेनिंग हो जाता है,
और फिर एक अकम्प्लिशमेंट, जब मैं इशारा भी करती हूँ तो वो समझ जाते हैं कि हमको ये चीज करना है। इस लेवल तक जब स्टूडेंट आ जाता है, देन दे हैव देयर ओन क्वालिटी। तो उसको जब निखारने की जब बात आती है ना, तो दैट वन थिंग आई लाइक। सो आई गिव देम स्पेस आल्सो। आई टेल देम टू कोरियोग्राफ देयर ओन स्टाइल, देयर ओन डांस। क्योंकि यहाँ पे हम, एज आई टोल्ड यू अर्लियर आल्सो, क्लासिकल बेस जो है अकॉर्डिंग टू द नाट्य शास्त्र एंड ऑल गिवन टू अस, शास्त्रास एंड ऑल, उसमें हमें छेड़खानी नहीं करनी है। बट उसके अलावा एवरी आर्टिस्ट हैज अ डिफरेंट अरोमा इन हर स्टाइल, so I try to bring out that. Okay, that's really nice of you. Since you have launched Kala Shakti during the COVID-19, can you please tell us a little bit more about Kala Shakti? Yes, just Corona started in March, and yes. 2 weeks, within the 2 weeks, I and Siddhi, we were discussing कि भाई लेडीज जो है, हाउस वाइफ्स हैं जनरली, थोड़ा बहुत बाहर जाते आते होंगे, उनका वही रहता है कि भाई सर्जरी के लिए बाहर गए या फिर फ्रेंड्स को मिल के आए और समथिंग लाइक दैट। अभी वो लोग भी उतना भी नहीं जा पाएंगे, तो फिर उनके लिए लेट आउट के लिए स्पेस क्या है? What will they be doing? वो लोग क्या अंडरगो करते होंगे, ये हम डिस्कस कर रहे थे। एट दैट टाइम मुझे, हम दोनों को ऐसा लगा कि भाई हमें इनके लिए कुछ करना है। तो लेडीज के लिए ये कला शक्ति लॉन्च किया मैंने, दैट इज इन्वोकिंग द शक्ति विद इन अस थ्रू कला, थ्रू डांस। एंड अक्षता, उसका इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिला मुझे, एंड नो पीपल वेर लाइक बहुत इमोशनल भी हो गए हमारे वर्कशॉप में। इनिशियली आई यूज्ड टू टेक इट फॉर 3 days एंड देन विद इन 2 days आई यूज्ड टू कवर द पोर्शंस। एंड मैंने भी डांस किया, ऑल द लेडीज, उन लोगों ने भी डांस किया, और उसमें काफी सारे 50+ वाले भी लेडीज थे एंड 80 वाले भी थे, एंड उन्होंने भी इतना अच्छा परफॉर्म किया और फिर रिकॉर्ड करके भी भेजा हमको। तो और फिर सब लोगों ने मतलब ये जाना कि भाई हमारे अंदर भी शक्ति है, ये हम भूल ही गए थे। तो रेखा जी को थैंक्स कि उन लोगों ने वापस याद दिलाया कि भाई हम भी है ना, हमारे अंदर भी शक्ति है। तो आई थिंक जो जिस इंटेंशन से मैंने और सिद्धि ने वो लॉन्च किया था, वो बहुत ही अच्छी तरीके से वो बाहर अच्छा निखर के आया। और अच्छा भी हुआ that you started it during the corona time when people already got frustrated sitting at home like अरे क्या अभी ये, they were not knowing what is gonna happen, and that leads to another level of depression. Exactly. Yeah. And ma'am, how was your इसलिए भी हमें, हमारे पास अगर ऐसे टैलेंट है तो हमको उसको रखना, जिंदा रखना बहुत जरूरी है, ताकि हम दूसरों को भी डिप्रेशन से बाहर निकाले और हम खुद भी उसमें से बाहर निकले। Yes, so true. And मैम, और एक पूछना था मुझे, आप you have already done so much of international shows outside of India. How was your experience? डेफिनेटली बाहर जो किया हमने उसमें एक्सपीरियंस ज्यादा अच्छा था, बट आई फील बिकॉज मे बी घर की मुर्गी दाल बराबर बोलते हैं, ऐसा ही शायद यहाँ पे हम अपने कल्चर के साथ हैं ऑलरेडी, इसलिए हमारे लिए गरबा कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है, क्लासिकल डांस बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं दिख जाता है ऐसा। वहां पे ऐसे नहीं है उन लोगों को, इसलिए द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द प्रोग्राम्स वहां पे हम देखेंगे तो इतना ह्यूज लेवल पे करते हैं वो। इवन द क्लासिकल, इवन द गरबास, इफ यू सी ओमान में, मस्कट जैसी कंट्री में गरबा जो वहां पे जो होता है उसका लेवल यहाँ पे जो मैंने देखा है उससे बहुत कम है, मतलब बहुत ही ज्यादा है। तो हाँ, वो दूर है इंडिया से, इसलिए उन लोगों को इंडिया का योगा एंड कल्चर ज्यादा इम्पोर्टेंट लगता है। उनके बच्चों को वो ज्यादा सिखाते हैं, अगर वही यहाँ होते तो नहीं सिखाते शायद। True.
And ma'am, I have heard there are some mudras that can actually relieve the stress and the back pain. In general, can you tell us the mudras? हाँ, यस यस, डेफिनेटली वी कैन डू दैट। ये मैंने किया है कला शक्ति में, मैंने सारे मुद्रास सभी लोगों को मेरे साथ साथ मैंने करवाया था। वही टाइम पे मैंने कला ज्ञान भी लॉन्च किया था। कला ज्ञान इज टोटली अबाउट द मुद्रास, जो हम 1-to-1 बेसिस पे मुद्रास हम सिखाते हैं। बिकॉज मुद्रास अपने 5 जो तत्व से अपना जो शरीर बना है, एक एक तत्व एक एक फिंगर के साथ जुड़ा हुआ है। सो आपको अपना हमको पहले हिस्ट्री लेनी पड़ती है थोड़ी बहुत कि भाई उनकी प्रकृति कैसे है। तो उनकी प्रकृति के हिसाब से जहां भी हमको प्रॉब्लम है लगता है हमको, तो उस हिसाब से वो मुद्रास हम देते हैं। लाइक अगर बहुत एफिशिएंटली हमको ब्रेन को हमको चलाना है, बहुत ज्यादा अगर आप भूल जाते हो और ऐसे कुछ करना हो, तो उसके लिए ऐसा है। You want to try? Yes, I want to try. Okay, so ये मुद्रा भी बहुत ही अच्छी है। पर वो आपको क्या, हमको क्या करना है, ऑल दी मुद्रास 3 to 4 मिनट्स, उससे ज्यादा नहीं, और दिन में 2 बार इस प्रकार like से। this, right? हाँ, ये Yeah. ओके। एंड नॉर्मल ब्रीदिंग पे आ जाएंगे, पहले थोड़ा वर्कआउट कर लेंगे, नॉर्मल ब्रीदिंग आ जाएगा, उसके बाद करना है। ओके ओके, ये जनरल आपका मनोबल बढ़ाने के लिए, ओके आपके अंदर की शक्ति इन्वोक करने के लिए, ऐसा बोल सकते हैं। इससे गर्मी भी बढ़ती है शरीर में, पर इसीलिए मैंने आपको बोला कि 3 मिनट से 4 मिनट, उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि आपकी प्रकृति क्या है मुझे पता नहीं है। सो मैं एक रैंडमली अगर मैं बता रही हूँ, तो यू शुड प्रैक्टिस ओनली 3 मिनट्स, एंड यू कैन आल्सो गायत्री मंत्र व्हिच विल गिव यू lot of clarity and positivity within yourself. Okay. And for see, ये अंदर ले लो आप। ऐसे नहीं, ये थी, right? हाँ। This is for back pain. Back pain के लिए Why I'm stressing back pain? Because women continuously have this back pain issues. So at least कौन सा तो एक जनरल मुद्रा जिससे थोड़ा बहुत relief. I'm not saying 100% relief, depending on people, but yeah, that's why. अब जनरल जो मुद्रास है वो आप प्रैक्टिस कर सकते हो बैक पेन के लिए, बट बैक पेन के लिए आई वुड सजेस्ट कि भी फिजियोथेरेपी की जो एक्सरसाइज है, ये भी हमने कला ज्ञान में हमने कवर किया था, वो आप ज्यादा फायदा करेगा। Okay. Yeah. No, I will come and attend that session. Oh yes, definitely. And कॉन्ट्रा करना भी बहुत जरूरी है अक्षता। ज्यादातर जो बैक पेन कंप्लेंट करते हैं लोग आफ्टर डिलीवरी आल्सो, दैट इज बिकॉज वी आर टेंड टू वर्क दिस वे, यू नो, आगे के साइड में झुकने का। यस, बैक साइड झुकने का अगर थोड़ा सा अगर एक्सरसाइज, कॉन्ट्रा एक्सरसाइज हम करना शुरू करें, तो दैट आल्सो विल हेल्प अ लॉट। ओके, that's good. We should actually do it. And ma'am, how is entrepreneur and working woman important for India? I'm saying in general aspects. I think very important, because आजकल लड़कियों की एजुकेशन के लिए, गर्ल चाइल्ड एजुकेशन के लिए इतने सारे प्रोजेक्ट्स हैं और इतना सारा वुमेन एम्पावरमेंट का हम काम कर रहे हैं, बट देन एट द एंड ऑफ द डे a girl pursues CA and doctor and MBA, MBC, बहुत सारी चीजें कर लेते हैं, बट उसके बाद शादी एंड देन बच्चा होने के बाद वो छोड़ देते हैं काम। I think economic development of the country also lies in the hands of all these girls who are educated. आप इतना एजुकेशन करने के बाद अगर आप कंट्रीब्यूट अपने कंट्री के लिए नहीं कर रहे हो, तो वो तो एक्चुअली बहुत गलत बात है। That's a very important point. Yeah, I would suggest at least आप 10 घंटा बाहर जाके ना करो तो भी 6 घंटा तो कुछ ना कुछ कर ही सकते हो। Yes. है ना? Because as you see in all the developed countries,
everybody makes a contribution. खुद तो पैसा कमाना ही है, वो एक एस्पेक्ट अलग है, बट देन आपकी सर्विस टू द कंट्री is also very important. I have never seen a family of 5 people depending on one person in developed countries. वो सिर्फ इंडिया में ही होता है, एक आदमी कमाता है और 5 लोग घर में बैठ के खाते हैं. हाँ, ये बहुत बड़ा नाइंसाफी है, कमाने वाले पर भी और अपने कंट्री के लिए भी. So I think पढ़ना लिखना जो बच्चों को, हम लड़कियों को जो हम सिखाते हैं, उसके साथ साथ एज आई टोल्ड यू कि हमारी परवरिश ऐसे हुई थी कि भाई आपको अगर जिम्मेदारी आती है किचन की या बच्चे की भी, तो आपको वो उसको सिर्फ मैनेज करना है कहीं ना कहीं. उसको वो आई थिंक ये सारे स्किल्स लड़कियों को सिखाना या फिर लड़कों को भी सिखाना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, rather than सर्टिफिकेट्स के पीछे भागना. यस यस, क्योंकि अभी जैसे चल रहा है सिचुएशन, इंडिया नीड्स मोर फीमेल एंटरप्रेन्योर्स. जैसे मोदी जी ने बोला आत्मनिर्भर भारत, तो if you go see that, then we should also focus more on female, because that is also very important. Females are like tell me. Females को देख के ही पूरे घर पे like whole family watches her, what she is doing, the children, everyone. So if the children sees the mother is becoming she's a working or she is an entrepreneur, they continue to see women in that way, like okay, my mother is an entrepreneur, I would also support my wife or my sister to become something. So that mentality comes in the family. Yes. So that's a very good point that you said, that India needs more female entrepreneurs. They need, and I think girl child education के लिए जितना emphasize हम कर रहे हैं, I think बराबर है. मैंने एक बार ट्वीट भी किया था अपने मोदी जी को, प्राइम मिनिस्टर को, कि जितना हम एजुकेशन गर्ल्स के लिए बोल रहे हैं ना, बॉयज को भी करना जरूरी है. See, skill development or boys understanding, giving respect to the partners, giving respect to the mother, ये भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है. हम हमारे इंडिया में परवरिश बॉयज की ऐसे करते हैं कि भाई पानी का ग्लास भी लाके दो. So true, so true. मतलब अगर ये इस तरीके की परवरिश है, तो वो जो आगे आने वाली जो बहू है, वो तो कोसने वाली है कि भाई क्या किया तुमने लाइफ में. पर मैं आई ऑलवेज टेल माय सन, ऐसे तुम्हारा काम है, तुम करो भाई. डोंट एक्सपेक्ट कि भाई माँ करेगी या फिर आके बहू करेगी. मैं बोली कोई नहीं करेगा, वो आएगी, वो उसका काम लेके आएगी साथ में. Yeah, so true. Good point that you have said. And दोनों को एजुकेट करना बहुत जरूरी है. Yeah, and what advice would you give to women who want to start her own business? See, if they want to start something new, as you said, बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जहाँ पे उनको हेल्प मिल सकती है और फिर वो कर सकते हैं. और वो शुरू करें, छोटा सा कुछ शुरू करें, and then slowly they can increase the volume of their business. But I think बहुत हिम्मत से करना चाहिए उनको, क्योंकि आज जो भी बहुत बड़े लेवल पर भी है, उन्होंने भी शुरू कहीं ना कहीं से तो किया ही होगा. तो वो शुरुआत में डरने की कोई जरूरत नहीं है मेरे ख्याल से. से ज्यादा क्या होगा, थोड़ा नुकसान होगा या तो फिर हम फेल हो जाएंगे. नो प्रॉब्लम, वी कैन ट्राई समथिंग एल्स. क्योंकि इतनी क्लैरिटी अगर नहीं है, फॉर मी आई वाज वेरी क्लियर दैट आई कैन डू एनीथिंग विद डांस. Either it is choreography, either it is performing or production of new ballet or mentoring my students, giving programs to them. I can run around everything in dance. But अगर आपको आपके प्रोफेशन में या फिर जो बिजनेस करने जा रहे हैं, आपको इतना सारा पता नहीं है, तो थोड़ा सा शुरुआत कीजिए, थोड़ी सी हल्की सी. आई थिंक थोड़ी सी एक चिंगारी भी होगी ना, उसको भी आग पकड़ने में टाइम नहीं लगता है, वो भी बहुत अच्छा फ्लरिश होने का चांसेस है. बट शुरुआत करनी चाहिए, वहीं पर हमको थोड़ा कॉन्फिडेंस का लैकिंग रहता है. तो आई थिंक वो करना चाहिए. एंड इररेस्पेक्टिव ऑफ वॉट एवर लैंग्वेज दे स्पीक, हम लोग वी एम्फसाइज मोर ऑन इंग्लिश एंड ऑल दैट थिंग्स,
बट मैंने देखा है कि बहुत सारे रीजनल लैंग्वेज बोलने वाले लेडीज भी बहुत सक्सेसफुली बहुत कुछ कर रहे हैं. Yes. तो So आई थिंक लैंग्वेज भी बैरियर नहीं है. ओनली थिंग इज ओनली वी लिमिट आवरसेल्व्स. वो हमको नहीं करना चाहिए. yes, because if we start like you said, you started from a very small, and then you did everything in that. So most Yeah. important is have confidence and develop your own skill, what you are good at, and then follow your path. Yes, very much, very much. और इसीलिए आई फील स्किल डेवलपमेंट का जो है, जो सब्जेक्ट है जिसको बहुत अनटच्ड रहते हैं हम लोग स्कूल, उसको डेवलप करने की बहुत जरूरी है. और अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में आया है कि एक स्टूडेंट हु इज लर्निंग केमिस्ट्री और फिजिक्स कैन आल्सो लर्न डांस एज अ करिकुलम. तो ये एक बहुत अच्छा अभी आया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में. हालांकि आई हैव वर्कड विद आवर मिनिस्टर आल्सो, एजुकेशन मिनिस्टर, फॉर मेकिंग डांस अ कंपल्सरी सब्जेक्ट इन ऑल दी स्कूल्स. But to my surprise, state government schools did not take up this, but other CBSE school and other schools they took up that. तो वहाँ पे तो है ही. अभी यहाँ भी स्टेट गवर्नमेंट में भी ऐसा न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आया है इसमें होने लगा है. अगर ये आर्ट फॉर्म हमारे पास होता है, कोई भी आर्ट फॉर्म लाइक स्टिचिंग और पेंटिंग, और मैंने इंटरव्यू किया था 2 प्रिंसिपल्स का, तो उन लोगों ने भी बोला कि कारपेंट्री है, इलेक्ट्रिक जो है, ये सारा चीजों भी अभी करिकुलम में आने लगा है. एंड विच इज सो वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप इलेक्ट्रिकल इसमें भी अगर आप अच्छे हो तो आप उसका भी बिजनेस कर सकते हो. बिजनेस कर सकते हैं. राइट. तो ऐसा नहीं है कि अगर मेरे टाइम पे मैं अगर मेरी बात करूं तो मैं कॉमर्स का कर रही थी, पढ़ रही थी, हिंदी का पढ़ रही थी, तो मेरा कॉलेज कहीं था, मेरा क्लास कहीं था. तो आई यूज्ड टू ट्रैवल साउथ चेन्नई टू नॉर्थ चेन्नई. पर अभी वो नहीं है. अगर आपको अंडर वन रूफ मिल जाता है बोथ द थिंग्स, तो फिर मेरा कॉमर्स का भी साथ में हो जाता, डांस का भी साथ में हो जाता. तो Everything all together. yes. So I think these things are very important, and that is why in my NGO, Kalakriti Cultural Center, which you said, we go to schools, such schools where these skills are actually I say possible ही नहीं है वहां तक पहुंचे. उतने remote villages में जाके we go and teach them skills. This is, of course, this project is headed by my daughter, and she is having 15 people in her team. So they all go to such schools and they teach these skills. See, देखो पैसा डोनेट करना कभी कोई कर देगा, पर स्किल सिखाना है तो नो नहीं कर पाएंगे. तो आई फील वेरी इंपॉर्टेंट. तो वो स्किल्स को सिखाना और उनको एक ऐसा भी है आपकी जिंदगी में पॉसिबल है, ये चीज भी बताना बहुत जरूरी है. So that also will empower the children. Yeah. That's very important. That's very noble cause, and it's like giving back to the society. Exactly. That is what very important. Like whatever we learn, like you said in earlier, that knowledge को हमेशा बांट देना, मतलब knowledge जो है उसको share करना चाहिए. Yes, बिल्कुल. Yeah, thank you very much. So much. I really enjoyed having a conversation with you so deep, and really thank you so much, Rekha ji, for coming and sharing your true wisdom, thoughts, and your experience to everyone here. And ma'am, just I told you, मैंने आपके लिए कुछ special बनाया है actually. ये सोच के मैंने yeah. I will gift you when I meet you in person that I have drawn this one. Oh my God, oh, so lovely. शक्ति मेरे दिल के बहुत करीब. Yes. बहुत yes, Are you an artist? Yeah, I painted it. बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर. You said you are an engineer. I never knew you were draw. And it's amazing. Yes, I do. It all happened in COVID-19 कि मैंने ये start किया, ये भी चालू कर दिया मैंने.
क्या सो बात है। ये मैं आपको सच में आपको आके देना चाहती थी, लेकिन अभी कोरोना वायरस है तो मैं आके दे नहीं सकती, तो मैंने ये रखा है। मैं जब आपसे मिलूंगी नेक्स्ट टाइम तो पक्का मैं आपको ये अच्छे से फ्रेम करके दूंगी, बट अभी के लिए बहुत ही अच्छा लगा मुझे, या थैंक सिंस यू। कला शक्ति था तो मेरे माइंड में इतना आया कि कला शक्ति है तो कुछ शक्ति देवी का ही इससे मैं बनाने सोचा, तो मैंने यही बना लिया। ओ बहुत ही ब्यूटीफुल है यार, बहुत ही अमेजिंग है, और बहुत ही यप। मेरे दिल के करीब का वो सब्जेक्ट है। इनफैक्ट सिद्धि ने बोला भी था कि मम्मा कुछ हम अच्छा सा नाम रखते हैं, यंगस्टर्स को पसंद आए ऐसा, बट देन आई सेड नो, कला शक्ति इज वेरी डियर एंड नियर टू मी। मैं करूंगी तो कला शक्ति करूंगी, तुमको जो करना है वो तुम कर लेना फॉर यंगस्टर्स। ओके, नेक्स्ट टाइम पक्का आई कम एंड गिव दिस टू यू। या तो ये शक्ति मुझे बहुत ही पसंद आई सर, वेरी ब्यूटीफुल, थैंक यू, Yeah. थैंक यू, Yes, थैंक यू। I will gift you once I meet you in person. Yeah, definitely will meet. Definitely will meet. Okay, ma'am. Thank you very much. Seriously, I'm feeling very positive, very energetic by talking to you. Seriously, you shared so much of information, and I think मुझे खुद पे implement करने के लिए इतना inspire कर दिया आपका story, आपके पूरे experiences. वही Thank करना you था। very much. अच्छा है कि आज तुमने मुझे यहाँ पे बुलाया, और फिर यू आर ऑल्सो गेटिंग इंस्पायर्ड बाय माय, आई मीन माय कॉन्वर्जेशन टू यू, तो अच्छा लगा Yes. मुझे। करो जो भी, अगर पॉज भी लिया है जिंदगी में तो पॉज ले लो, बट कुछ ना कुछ करते रहना। एंड आई कैन सी दैट इंटरेस्ट इन यू, दैट zeal टू डू समथिंग विथ योर लाइफ। तो ये चीज जो है तुम्हारे अंदर, जो उसको बरकरार रखना, उसको कभी कम Yes. नहीं होने देना। और No, no, जितने I भी would never. लेडीज और जितने भी लेडीज हैं यहाँ पे, उनको सबको मैं यही मैसेज देना चाहूंगी कि आर्ट एंड कल्चर के साथ कहीं ना कहीं आप जुड़े रहें, अपने लिए, अपने देश के लिए कुछ करते रहें आप, और कभी भी हिम्मत ना हारिए, क्योंकि अपने अंदर वो चीज है, उसको सिर्फ जागृत करने की जरूरत होती है। तो जस्ट फाइंड द राइट पीपल, राइट सिचुएशन और वॉट एवर, और वो जो चीज है अंदर का, आपका जो शक्ति है, उसको ट्रिगर कीजिए थोड़ा सा, और फिर देखिए कमल, बहुत अच्छी तरीके से आप अपना भी कर सकते हैं और पूरे परिवार, एंड देन पूरा देश भी उसमें आता है। सो कीप डूइंग समथिंग एंड स्टे हैप्पी। Yes. Yes. या, Okay, ma'am. Thank you so much. Okay. थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। ओके, टेक केयर, Yes. बाय बाय। Yeah. Bye बाय, bye. गॉड ब्लेस, बाय। ओ मैडम, कैसा था मैम? बंद करो।